निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। Namaskar, myself Dr. Varalakshmi Indrakanti, again here with new topic, and subject is Pedagogy of Teaching English SECM 02 B.Ed Special Education, and today we will be talking about instructional aids and specifically worksheets, handouts and PowerPoint presentation. Before deciding any lesson or topic, first we have to frame few objectives, and after watching this video you will be able to know the usage of worksheets, handouts, PowerPoint presentation and how they are helpful in supporting language learning. And along with that you will be able to learn the importance of all these instructional aids and the benefits, as well as how these worksheets, handouts and PowerPoint presentation enhances students' understanding. And you will see that how we can be able to assess the role of worksheets and handouts in enhancing students' understanding. And after watching this video, you will be able to know the usage of worksheets and PowerPoint, you will be able to explain the importance, then next will come the you will be able to describe the benefits of using worksheet and handouts, and worksheet, handouts and PowerPoint presentation, how much they are able to enhance the student understanding, and how you will assess that how far you have been successful in achieving the learning objectives. These are types of learners. We know that there are various types of learners in the classroom because we have heterogeneous class. So, visual, kinesthetic, auditory, stress, ease, scribble, trust, teach, copy. It means there are some learners who learn better when they see something visual. Kinesthetic, there are some students in the classroom who learn when they are given hands-on experience. Auditory means students when they hear something, then they learn much faster. And there are some students when there is lot of stress, they perform better. Ease, there are some students when learning environment is very easy and very friendly. Then sometimes there are students, they learn when there is a scribble. And trust, when teacher creates trust in the classroom, they learn much faster. And sometimes there are students, when teacher is teaching, they understand the concept very well. And sometimes there are learners who copy, write and rewrite, then they learn faster. It means in our normal classrooms, we will see that all types of learners are there in the class. Now, first we will be talking about worksheets and what are the key principles for creating worksheets. First thing, it is a responsibility and skill of teachers to create effective worksheets for senior and special education with reference to English students. Then teachers and educators should focus on differentiated instruction that addresses individual needs, incorporates visual, auditory and kinesthetic learning modes. Then use materials relevant to their interest and integrates life skills and practical skills. Next comes the material should be adaptable for different reading levels. And last one is the instructional aids should offer opportunities for both structured practice and creative expression.
with a gradual approach to new concepts and vocabulary. Since we are talking about language learning, so there should be lot of practice and they should be allowed to have creative expression. Then only they will be able to learn new concepts and vocabulary. Now, we will be talking about how this worksheet can be created. First thing, it should be individualized instruction. It means when you are teaching group of 40 or 50 students in the classroom, but when you create worksheets, you have to see that each and every student is given individualized instruction. Second, incorporate multiple learning modes. It means as we have talked in earlier slides that हमारी कक्षा में मल्टीपल लर्निंग स्टाइल के छात्र होते हैं, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमको मल्टीपल लर्निंग मोड्स को भी वर्कशीट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा. देन वी शुड यूज़ इंटरेस्ट बेस्ड मटेरियल्स. इसका मतलब क्या है, छात्रों को यदि यह वर्कशीट रुचिकर लगेगी तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा. देन focus on practical skills. We know that in language practical is very important. So worksheets should focus practical skills. Then structure lessons with familiar context. It means while planning your lessons, we have to see that we are using familiar context in creating worksheets, and the worksheet idea should also be related with the lesson plan as well as the objective. Then in worksheet we have to see and ensure that sentence buildings with visual aids is also included. There should be some matching activities in the worksheet. Then sequence and following instruction means as per the learning objective we have to follow the proper sequencing, and along with that proper instruction should also be given to the learners before giving or distributing the worksheets to the children. Then functional vocabulary. फंक्शनल वोकैबुलरी का तात्पर्य यही है कि हमको बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग वर्कशीट में नहीं करना चाहिए. हमें ऐसी वोकैबुलरी को यूज़ करना चाहिए जो कि छात्र बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है. देन adaptive reading comprehension. Since we are talking about language learning, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्कशीट्स में adaptive reading comprehension को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए दिया जाना चाहिए. सो अब आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने एक वर्कशीट बनाई, उसमें एक पिक्चर बना दिया, हाउ एंगर फील्स. इसका मतलब क्या है, जब आप बहुत गुस्सा होते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो जाते हैं. आपका चेहरा लाल हो जाएगा, कान खड़े हो जाएंगे, नाक के जो नथुने होते हैं वो फूलने लगते हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी आर एंग्री our body language also change according to this. So it means through this worksheet we are able to very clearly picturize what type of expressions you feel when you are in anger. और ये साइड में आपको एक फेशियल एक्सप्रेशन दिया है और साथ में आपको वर्ड्स भी लिखे हुए हैं जिसको कि आपको मैच करना है, और आप इसको अपने आप से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो ये राइट साइड में ब्लू पार्ट में जो लिखा हुआ है उनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आते हैं. और उसी के साथ साथ आपको ये जो लड़की की फ़ोटो बनी है उसको भी आप एक्सप्रेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं. और ये भी हो सकता है कि ये बच्ची के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिस्ट आउट नहीं है, बट इफ़ यू फाइंड समथिंग other than this listed out, you have to mention that also. इसका मतलब क्या है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए और कीन ऑब्जर्वेशन के लिए आपको ये वर्कशीट प्रेरित करती है, और लैंग्वेज में ये दोनों चीज़ें बहुत अधिक जरूरी होती हैं. Now we will be talking about how to choose the right type of visual aids in teaching. इसका मतलब क्या है कि जब आप कक्षा में विजुअल एड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंस देर आर लॉट ऑफ विजुअल एड्स अवेलेबल, पर आप कक्षा में कौन सी विजुअल एड्स को इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके
कंटेंट से मैच करता हो। तो आपने ये देखा हुआ है कि इस चार्ट में आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा, विजुअल एड की लिस्ट दी है, फिर लर्निंग स्टाइल की बात की है, फिर टीचिंग स्टाइल की बात की है और सब्जेक्ट की बात की है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट्स में आप देखेंगे, लर्निंग स्टाइल में आएगा आपका फिजिकल एंड वर्बल लर्नर्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसे वो छात्र जो कि फिजिकल एक्टिविटी और इसके साथ साथ वर्बल इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखते हैं। तो उसमें आप देखेंगे टीचिंग स्टाइल आपकी क्या होगी, आप लेक्चर दे सकते हैं, एक्टिविटीज करवा सकते हैं, या फिर ग्रुप स्टाइल के माध्यम से भी या ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से भी छात्रों को सिखा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप इन लर्निंग स्टाइल को या टीचिंग स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, वो विषय हैं हिस्ट्री, म्यूजिक एंड आर्ट। फिर आता है पोस्टर्स। पोस्टर्स आपका विजुअल है और ये एक लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से छात्रों के मध्य हमको इसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसको लेक्चर एक्टिविटी में भी, टीचिंग स्टाइल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रुप स्टाइल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से आप देखोगे जो पोस्टर्स हैं उनको साइंस, लैंग्वेज और मैथ्स में इनका बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। फिर आते हैं फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स जैसा कि समझ में ही आ रहा होगा कि ये एक विजुअल है, तो इसको आप देखोगे फिजिकल एंड वर्बल लर्नर्स। इसका मतलब क्या है, जो विजुअल्स दिखाते हैं वो खाली विजुअल दिखाकर टीचर छोड़ नहीं देती है, उसको जो है वर्बली छात्रों के समक्ष एक्सप्लेन भी करती है। एंड दिस कैन बी यूज इन ग्रुप एक्टिविटी स्टाइल। सो इसका मतलब है कि यदि आप कोई विजुअल दिखा रहे हैं तो एक साथ कई छात्रों को ग्रुप एक्टिविटी इस तरह की दे सकते हैं। एंड खास तौर से दिस विजुअल, फिजिकल और व्हेन यू आर डीलिंग विथ इंस्ट्रक्शंस, इट कैन बी यूज्ड इन foreign language, mathematics, or specifically you can talk not only foreign language, but when you are teaching about language, flashcards can be very useful to the teacher. Then illustrations and photos. So this is visual और as well as आप देखोगे कि सोशल लर्नर्स है। इसका मतलब क्या है, सोशल लर्नर्स है नहीं जो कि ग्रुप में बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो लर्निंग स्टाइल की जब हम बात करते हैं, ऑल टाइप ऑफ स्टाइल्स, ऑल टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल्स, देन आप देखोगे कि उसके साथ साथ आप देखोगे कि लेक्चर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन हो, लेक्चर हो, डिस्कशन हो, प्रेजेंटेशन हो, उन सब में आप देखोगे कि इलस्ट्रेशन एंड फोटोज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जो है हर विषय में जो है इलस्ट्रेशंस और फोटोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियोज हैं, चूंकि ये पता ही है कि वीडियोज में आप देखोगे विजुअल तो है ही है, इसके साथ साथ आप चाहोगे कि ऐसे लर्नर्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि वीडियोस आपने क्लास में चला दिया और उसके साथ साथ उसमें तो कैप्शन रहते ही हैं, वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है, बट व्हेनेवर टीचर फील्स लाइक, टीचर जो है उस वीडियो का इंटरप्रिटेशन एक सिंपल लैंग्वेज में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। एंड दिस कैन बी यूज इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड स्पेसिफिकली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द वीडियोज, खास तौर से देखोगे इन ऑल द सब्जेक्ट्स इट कैन बी यूज एंड स्पेसिफिकली यू विल सी दैट इन लैंग्वेज दिस काइंड ऑफ वीडियोज कैन बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उससे आपको प्रोनाउंसिएशन है, पंक्चुएशन है, एक्सप्रेशन है, ये सब चीजें सीखना छात्रों के लिए बहुत आसान हो सकता है। इसके बाद आती है स्लाइड प्रेजेंटेशन। आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं ये स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही कर रहे हैं और ये एक विजुअल मीडियम भी है और इसके साथ साथ वर्बल एक्सप्लेनेशन भी चल रहा है। तो ये एक्टिविटी भी हो सकती है और इसको टीचर एक कोच के रूप में भी कक्षा में प्रेजेंट कर सकता है। और आप सभी को इस समझ में आ गया होगा कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है, इट कैन बी यूज्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। और ये आजकल के ज़माने में आप देखोगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है हर विषय में, हर कक्षा के छात्रों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशनल टूल या इंस्ट्रक्शनल टूल है। इसके साथ साथ आता है आपका हैंडआउट्स। हैंडआउट्स मतलब आप कक्षा में दिखा रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि ग्रुप में भी और इंडिविजुअल भी आप उसको सिखा सकते हैं। एंड इसमें आप ब्लेंडेड स्टाइल में, टीचिंग स्टाइल में इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्लेंडेड जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि टीचर विल यूज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, इट मीन्स ब्लेंडिंग ऑफ ऑल टीचिंग स्टाइल इन द क्लासरूम टीचिंग।
और आप देखोगे ये हैंडआउट जो हैं ज्योग्राफी है, साइंस है, लैंग्वेज में है। सो कहने का मतलब क्या है, इन हैंडआउट्स को सभी विषयों में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो विजुअल एड्स होते हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल में, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल में और विभिन्न विषयों में, इसको यदि टीचर वाइजली इनकॉर्पोरेट करता है तो इसका बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में वो समर्थ होगा। जिस हिसाब से लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके साथ भी वो मैच कर सकता है। अब आता है कि हाउ वी कैन यूज वर्कशीट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्कशॉप्स आर अ वैल्यूएबल टूल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ opportunities to practice and reinforce language skills. So these are the some important benefits of the worksheets. सबसे पहली बात आती है प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो वर्कशीट दी जाती है वो बार बार प्रैक्टिस करने से छात्रों को उस विषय में कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को, लर्निंग एबिलिटीज को एक रीइंफोर्समेंट मिलता है। सो वर्कशीट्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ एडिशनल प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स, हेल्पिंग टू सॉलिडिफाई देयर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने से, जैसे कि कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जब आप प्रैक्टिस करने से जब आपको भाषा में कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आप उसका एक्सप्रेशन को सुधार लेते हैं, तो डेफिनेटली जब आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को रीइंफोर्समेंट मिलता है, और वर्कशीट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन नेक्स्ट कम्स दी इंडिविजुअलाइज लर्निंग। इसका मतलब क्या है, वर्कशीट चूंकि कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों को अलग अलग दी जाती है, इस वजह से ये इंडिविजुअलाइज लर्निंग को प्रेरित करता है। इसका मतलब क्या है कि कक्षा में उपस्थित डिफरेंट स्टाइल्स के लोग अपनी अपनी इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल के अनुसार इस वर्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वर्कशीट्स कैन बी टेलर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, अलाउिंग देम टू वर्क एट देयर ओन पेस। इसका मतलब क्या है, चूंकि टीचर्स क्रिएट दिस वर्कशीट, सो उनके हाथ में ये होता है कि कक्षा में उपस्थित विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार जो है ये वर्कशीट्स बनाई जाएं, जिससे कि हर छात्र को अपनी ओन पेस, अपनी ओन स्पीड के साथ काम करने के लिए उनको फ्रीडम मिल जाती है। देन असेसमेंट, worksheets can be used to assess students understanding and identify areas for further instruction। चूंकि वर्कशीट्स में आपके पास, टीचर के पास एक प्रिंट आउट उपलब्ध रहता है, सो यह टीचर के लिए बहुत आसान होता है कि बच्चों का असेसमेंट किस तरह से किया जाए, और उस असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षाओं में टीचर जो है अपने फर्दर इंस्ट्रक्शन को किस तरह से बेहतर बना सकती है, और कहाँ कहाँ उसे किन किन इनपुट्स को देने की आवश्यकता है, वो टीचर इसके बाद डिसाइड कर सकती है। देन आप बात करते हैं अपन व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ वर्कशीट्स। सबसे पहली बात आती है ग्रामर वर्कशीट्स। फोकस ऑन स्पेसिफिक ग्रामर रूल्स सच एज वर्ब्स हैं, टेंसेज हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और आप देखोगे कि क्लॉज का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश टीचर जब वर्कशीट बनाती है तो ग्रामर के विभिन्न नियम हैं या टेंसेज हैं, वर्ब्स हैं, उनको कब कैसे यूज़ किया जा सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब में ग्रामर की वर्कशीट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिर आता है आपके वोकैबुलरी वर्कशीट। जंबल वर्ड्स जो है वर्कशीट में दिए जा सकते हैं, तो दिस कैन बी वेरी टारगेट स्पेसिफिक। खास तौर से वोकैबुलरी वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, या फिर आप इंक्लूडिंग डेफिनेशन, सिनोनिम्स हैं, एनीटॉम्स हैं, या in usage of various examples, these vocabulary worksheets can be very useful in language learning। फिर थर्ड आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट्स। इसका मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स पैसेजेस और टेक्स्ट विथ अकम्पनिंग क्वेश्चंस टू असेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब एक पैराग्राफ दे दिया गया और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसमें जो है उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या फिर उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से टीचर ये जान सकता है कि उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से हैं, न्यू वोकैबुलरी कौन सी आई है, फ्रेजेस कौन कौन से आए हैं,
और उस पैराग्राफ रीडिंग करने के बाद कॉम्प्रिहेंशन जब होता है तो टीचर कैन frame small questions and can ask students to answer those questions. So reading comprehension में भी worksheet is a very important teaching aid. Then comes the writing worksheets. Provide prompts or exercises to practice writing skills such as सेंटेंस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग. इसका मतलब क्या है कि टीचर जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस दे सकती है, इनकम्प्लीट पैराग्राफ दे सकती है या फिर एक टॉपिक दे सकती है जिसमें कि छात्रों को लिखना है और इन वर्कशीट में कुछ 4, 6, 8 शब्द ऊपर लिख कर दिया जा सकता है और बच्चों को ये कह सकते हैं फ्रेम द सेंटेंसेस ऑन दी अबव मेंशन सब्जेक्ट या ऐसे का टॉपिक दे दिया. पैराग्राफ में आपने एक की थीम दे दी जिसके अनुसार छात्रों को छोटे छोटे से पैराग्राफ रखने के लिए आप प्रेरित कर सकती हैं. तो इस तरह से आप देखोगे कि जो वर्कशीट्स होती हैं ग्रामर में, वोकैबुलरी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और जो आप खास तौर से जो कहोगे प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. Then how to use these worksheets effectively in the language. सबसे पहली बात रिलेवेंस की, हम पिछले हर वीडियो में बार बार हमने इस बात को स्ट्रेस किया है कि रिलेवेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन्स एंश्योर वर्कशीट्स आर रिलेवेंट टू द करिकुलम एंड अलाइन विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. जिस तरह से हमने शुरुआत के स्लाइड्स में हमने बात की थी, तो हमको ऐसी वर्कशीट्स तैयार करनी है जो कि वी हैव टू सी वेदर दे आर रेलेवेंट टू द करिकुलम एंड वेदर दे आर aligned with the learning objective. Then variety. Use a variety of worksheet types to cater to different learning style and needs. तो हमको वर्कशीट एक ही पैटर्न की नहीं बनानी है. जैसा कि हम बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि इन द क्लासरूम यू विल सी दैट देर आर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड व्हेन वी टॉक ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन यू विल सी दैट कि उनकी नीड्स अलग होती है. So while developing worksheet, it is the responsibility of the teacher that the worksheet should fulfill the different learning style and needs of the children who are present in the classroom. And next is most important, feedback. Provide feedback on completed worksheets to help students understand their strength and weaknesses. इसका मतलब क्या है, जब वर्कशीट्स कंप्लीट करके जब आप उसका असेसमेंट कर लेते हैं तो छात्रों को उसका फीडबैक जरूर दें और उन्हें ये बताएं कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स में दे हैव शोन देयर पॉजिटिव साइड और उनकी वीकनेस को भी टीचर को बताना होगा, जिससे कि वो गलती अगली बार कक्षा में वर्कशीट जब टीचर डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करती है, सो दोज वीकनेसेस आर नॉट रिपीटेड इन द क्लासरूम अगेन. देन आजकल के ज़माने में यदि हम डिजिटल वर्कशीट्स की बात नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी क्लासरूम पूरी नहीं होगी. इसका मतलब क्या है कि डिजिटल वर्कशीट को भी बनाना टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे प्रोवाइड मोर इंटरैक्शन. सो ये यूटिलाइज डिजिटल टूल टू क्रिएट इंटरैक्टिव वर्कशीट्स दैट एंगेज स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक. तो आजकल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पर कि बनी बनाई ये डिजिटल वर्कशीट्स होती हैं जिसको कि छात्र कंप्यूटर पे बैठ के जो है भर सकता है और ये इंटरैक्टिव भी होती हैं, आपको बीच बीच में हिंट्स भी दे देती हैं और दे आर क्वाइट एंगेजिंग ऑल्सो बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. तो छात्रों का जब इंटरेस्ट बना रहता है तो उनका मोटिवेशन भी बना रहता है. एंड दीज डिजिटल वर्कशीट्स दे प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक. इसका मतलब है कहीं भी गलती होती है तो छात्र अपने आंसर को स्वयं चेक कर पाता है. देन देर आर various online resources also. So a teacher should be well equipped that which are the various platforms or sources where she can derive these online resources which suits the learning objective as well as different learning styles of that particular class, such as worksheets हैं, exercises हैं, supplement instructions हैं which provide
एडिशनल प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन ऐसे बहुत सारी वर्कशीट्स उपलब्ध हैं जिसको कि एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, लैंग्वेज में आप जानते हैं कि लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बार बार जो है रेगुलर कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन इंग्लिश, लिसनिंग, इन सब स्किल्स की बहुत आवश्यकता होती है। सो ऐसी बहुत सारी वर्कशीट भी डिजिटली अवेलेबल है। And by incorporating worksheets effectively, educators can provide students with valuable practice and reinforcement opportunity, helping them develop their English language skills. चूँकि ये we are talking about pedagogy of English teaching, that is why I am stressing more on English language skills, but these worksheets can be applied in all the other subject whenever they are needed, and according to the subject and curriculum it can be changed also. So जैसा कि हमने इंग्लिश में ये पार्ट्स ऑफ द हेड की बात की है, तो ये बताया है कि सिंस दे आर सो एक्सप्रेसिव, it will be very easy for the students to remember these words. जैसे स्मॉल क्लासेस में यदि आप पढ़ा रहे हैं, प्री प्राइमरी या प्राइमरी में आप पढ़ा रहे हैं, but when you show this picture to the students, they will understand it very easily. So in this picture you will see that कि एरो लगाकर वो हेयर कहाँ है, फोरहेड कहाँ है, व्हाट इज आईब्रो, व्हाट इज आई लैश, तो नोज कहाँ है, माउथ कहाँ है, जॉ किसको कहते हैं, जिन किसको कहते हैं, लिप किसको कहते हैं। तो पहली बार टीचर चाहे तो दिस पिक्चर कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस, but in the next picture teacher can remove all the subtitles around the face, जैसे हेयर, ईयर, एक्सप्लो, एरो बना दे और वो छात्रों से उसको लेबल करने के लिए कहे. So that will be a very good practice and fun-loving practice for the students. So these are the few examples which can be used in the classroom, and the source is also given above the picture, which you can access and see. Various examples are also available. फिर आता है आपका next we will be talking about the handouts in English language teaching. Handouts are valuable resources in English language teaching, providing students with concise and focused information on specific language topics. So handouts एक तरह से printed paper की तरह होते हैं जिसमें कि English language practice के लिए students को बहुत concise और focused information जो है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दी जा सकती है. एंड handout is defined as an instructional tool that complement a lecture, resulting in improved understanding of information and test performance. आपको हर टीचर को ये ध्यान रखना होगा कि चाहे वो वर्कशीट्स हों, चाहे हैंडआउट्स हों, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, ये जो है टीचिंग एड जो है, इंस्ट्रक्शनल टूल, दे गो पैरेलली विथ टीचर्स इंस्ट्रक्शन. आप सेपरेटली इनका इस्तेमाल उतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं, पर टीचर के सुपरविजन में जब टीचर इंस्ट्रक्शन देता है तो along with teacher lecture and explanation, when we use these handouts, worksheets or PowerPoint presentation, they can become a very important instructional tool in teaching learning process. So these are the examples of handouts. इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ है, हैंडआउट टीचर के हाथ में भी है और छात्रों के हाथ में है, जिसके माध्यम से समझाना, ग्राफ समझा रहे हैं वो, तो बहुत आसानी से समझाया जा सकता है. यहाँ पर भी जो है आप एक हैंडआउट दिया गया है जिसमें इनकम्प्लीट पिक्चर, फिगर बना के दिया है एंड नीचे जो है 3-4 लाइन दी गई है. सो इन दैट हैंडआउट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन छात्रों को जो है उस नीचे की लाइन में ऑब्जर्वेशंस नीचे भरने हैं. तो 2 तरह के हैंडआउट्स का आपने यहाँ पर पिक्चर देखा. यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हम ये बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल एड्स. सो आप देखिएगा कि वॉल्केनिक इरप्शन की जब हम बात करते हैं
तो किस तरह से वो वॉल्केनिक आइलैंड क्या होता है, और आप देखेंगे कि समुद्र में या वाटर बॉडीज़ में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं, इस पिक्चर के माध्यम से ये दिखाया जाता है। तो छात्रों को जो है ये कलरफुल है, इसमें आप देखोगे कि बहुत डिफरेंट जोन्स दिखाए जा रहे हैं। फिर अंडर वाटर कौन कौन सी वाटर्स बॉडीज़ में आप कौन कौन सी चीज़ें देखने की स्पीशीज़ दिखती हैं, उन सब के बारे में आपको देखने के लिए कितनी सारी पिक्चर्स अट्रैक्टिव कलर्स में मिलती है। तो ये जो है छात्रों को एक कंटेंट को बहुत आसानी से समझा देता है, एंड ये एवर लास्टिंग होता है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर दोज थिंग आफ्टर सम टाइम ऑल्सो। क्योंकि यदि आप देखोगे कि सिर्फ लेक्चरिंग मेथड से टीचर पढ़ाता है तो वो बच्चों की मेमोरी में एवर लास्टिंग नहीं होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि 1 पिक्चर इज इक्वलेंट टू 1000 वर्ड्स। सो टीचर को इस तरह के इंस्ट्रक्शनल टूल्स का इस्तेमाल कक्षा में अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैंडआउट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। पहली बात यह है रेफरेंस मटेरियल। सो दिस कैन हैंडआउट्स कैन बी अ वेरी गुड रेफरेंस मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग देम विथ की इंफॉर्मेशन ऑन ग्रामर है, रूल्स है, वोकैबलरी है, या फिर लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रेफरेंस मटेरियल के रूप में होता है। मेन टेक्स्ट अलग होता है, रेफरेंस मटेरियल जो होता है कि आपको जब आवश्यकता होती है इन रेफरेंस मटेरियल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लैंग्वेज के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, वोकैबलरी हैं, उनको आप आसानी से सीख सकते हैं। देन सप्लीमेंटल इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है कि आपको जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस इंस्ट्रक्शन को ये सप्लीमेंट करता है। इट मीन्स इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर लर्निंग कैपेबिलिटीज और enhancing your understanding for that particular subject. So handouts can supplement classroom instruction, offering additional explanation, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है कि टीचर जब पढ़ाता है उस पढ़ाने को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए these handouts can be a very good teaching tool. Then organization, handouts can help students organize their notes and materials, making it easier to review and study. ऑर्गेनाइजेशन है ये हैंडआउट जब टीचर छात्रों को दे देता है सो दे कैन वेरी वेल ऑर्गेनाइज देयर नोट्स, और जो भी मटेरियल क्लासरूम टीचिंग में टीचर ने यूज़ किया है उसको सीक्वेंशियली रिव्यू करने के लिए और बाद में स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स के पास ये हैंडआउट्स या वर्कशीट्स हमेशा के लिए हो जाती हैं, एंड बिफोर एग्जामिनेशन दे कैन very well revise the content with the help of worksheet as well as the handouts. So these are the few handouts. So हम basically ये बताना चाहते हैं कि स्कल का शेप कैसा होता है। So ये एक प्लांट बताया है, प्लांट के बारे में यदि टीचर बना रहा है उसमें ग्रीन कलर क्यों इस्तेमाल किया गया है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई दिस लीव्स आर ग्रीन, ये एक्सप्लेनेशन जो है छात्रों के माध्यम से बता सकता है। इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल के में भी यूज़ कर सकते हैं कि these are the indoor plants and what is the importance of indoor plants in our life. So इस तरह के examples को according to the content teacher can utilize these examples in their classroom teaching. So types of handouts. So हम ये देखेंगे कि there are different types of handouts which can be used as grammar guides. So handouts that outline specific grammar rules हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं वर्ब्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं। सो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इन हैंडआउट्स में दे सकते हैं। देन वोकैबलरी की लिस्ट है, सो दैट कैन प्रोवाइड लिस्ट ऑफ वोकैबलरी वर्ड्स, डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ यूसेज। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लेसन में जितने भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आए हैं, मान लीजिए उसमें कोई डेफिनेशंस आई हैं या फिर कोई एग्जाम्पल्स आए हैं, टीचर जो है इन हैंडआउट्स के माध्यम से वो वोकैबलरी या डेफिनेशंस या एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल कर सकता है। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि छात्र 1 या 2 सैंपल के हैंडआउट्स बना दें और छात्रों को प्रेरित करें कि वो हैंडआउट स्वयं बनाएं।
सो जब आप देखोगे कि जो काइनेस्टिक एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, जब बच्चों को हैंड डाउन एक्सपीरियंस यदि उनको मिलेगा तो वो आप देखेंगे कि वो दे विल लर्न न्यू थिंग्स वेरी इजीली, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे डेफिनेशंस हो, या फिर वो न्यू एग्जाम्पल्स उसी चैप्टर में और ढूंढ के लाने की कोशिश करेंगे. देन लैंग्वेज टिप्स हैं, हैंडआउट्स दैट ऑफर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स है. उसमें आप देखिए लैंग्वेज स्किल्स में आप राइटिंग है, रीडिंग है या स्पीकिंग है, ऐसे बहुत सारे टिप्स जो है हैंडआउट्स के माध्यम से दिए जा सकते हैं. इसके साथ साथ एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ भी दी जा सकती है. एज वी ऑल नो दैट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव एनी लैंग्वेज we have to practice it again and again. So these handouts give a lot of exposure for exercise as well as activities. So activity में आप exercise कर सकते हैं, quiz कर सकते हैं. लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए टीचर चाहे तो विभिन्न तरह की एक्टिविटी कक्षा में कर सकता है, चाहे वो वर्ड गेम है, स्क्रैबल कहते हैं, ऐसी मैच दी फॉलोइंग के हैं. इस तरह के हैंडआउट्स भी कक्षा में बनाकर छात्रों को वितरित कर सकते हैं. सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ हैंडआउट्स. सो कुछ प्रिंटेड भी रहते हैं और कुछ जो हैं हैंडआउट्स में टीचर जो है आधा टीचर कर देता है और नीचे जो है ब्लैंक पेज दिया रहता है जिसमें कि छात्रों को हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं. इसके साथ साथ चूंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रहने हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं और डिजिटल नोट्स भी. आजकल आप जो है डिजिटल पैड्स आते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के पेन से आप यदि कागज़ पेन पर नहीं लिखना चाहते हैं तो ये डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं, जिनको कि जब आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उनको आप इरेज करके, तो पेज मतलब जैसे आप पेपर और पेज लेते हैं तो आप देखिएगा एक बार आप लिख लेते हैं तो उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे पेपर वेस्टेज होता है. और आप ये देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में ये पेज को भी बचा के रखना हमारे लिए ज़रूरी है. तो ये डिजिटल नोट्स का फ़ायदा हमको ये हो जाता है कि आप आवश्यकता के अनुसार इन नोट्स को बना लें, इरेज कर लें और उसमें फिर नए टॉपिक के नए नोट्स भी बना सकते हैं. सो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या आप देखोगे वर्ब्स हैं या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन है, एक्शन वर्ब्स हैं, इन सब के एग्जाम्पल जो हैं आप इन हैंडआउट्स के माध्यम से बहुत आसानी से इनका कलेक्शन कर सकते हैं. यूज़ एंड रीयूज़ भी इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है. देन हाउ इफेक्टिवली वी कैन यूज़ हैंडआउट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. पहली बात, बार बार क्लियर एंड कंसाइज. चूँकि हैंडआउट्स में हमको एक पेज की, क्योंकि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट. सो इन हैंडआउट्स को बेहतर प्रयोग करने के लिए वी हैव टू ऑलवेज एंश्योर दैट दे आर वेरी क्लियर एंड कंसाइज, जिसमें कि छात्रों को भी समझने में बहुत आसानी हो और टीचर को भी बहुत ज़्यादा मेहनत या फिर खर्चा ना करना पड़े. फिर रिलेवेंट की बात आती है, मतलब इट मीन्स इट शुड बी रिलेटेड टू द करिकुलम एंड अलाइन विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. फिर डिस्ट्रीब्यूशन, distribute handouts at the appropriate time such as during a lesson or as a supplement to homework. तो कक्षा में टीचर हैंडआउट्स प्रिपेयर करके ले जाती है, तो ये किस समय डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी टीचर को ध्यान में रखना होगा. यदि कक्षा में लेसन पढ़ाने के पूर्व यदि ये हैंडआउट्स को कक्षा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो क्लास एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगी और छात्र जो है इन हैंडआउट्स को देखकर इसके बारे में डिस्कशन करने लगेंगे. सो वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में टीचर हैज़ टू एंश्योर व्हेन these handouts or the worksheets will be distributed in the classroom so that classroom discipline is not interrupted. So उसको होमवर्क के रूप में देना है, लेसन के डेवलपमेंट के रूप में देना है या कब देना है ये टीचर को पहले ही डिसाइड कर लेना होगा. सो ये एग्जाम्पल्स ऑफ आपको हैंडआउट दिए गए हैं. खास तौर से हाउस होल्ड वोकैबुलरी, इसका मतलब क्या है कि टीचर जो है ऐसे चित्र बनाकर उसका एक प्रिंट आउट देकर छात्रों को दे सकती है. और ये हाउस होल्ड चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में जो चीज़ें बच्चा आम तौर पर देखता है
उसका इस तरह से हैंडआउट्स बनाकर छात्रों को दिया जा सकता है। सो छात्र बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। रिमोट है, सॉकेट है, आर्म चेयर है, बकेट है, कर्टेन है, प्लग है, लॉक है, प्लंगर है, ब्लैंकेट है, डस्टबिन है, ये सब चीज़ें जो हैं छात्र जो है एक बार में कलरफुल पिक्चर में एक ही छोटे से पेपर में बच्चों के पास आता है, तो ये हैंडआउट्स बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, स्पेसिफिकली इन द pre-primary or primary classes. So then it becomes very easy for the learner to understand as well as learn the spelling of this simple household things which are available in our house. फिर डिजिटल हैंडआउट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक हैंडआउट्स भी बहुत उपलब्ध हैं, तो आप और टीचर कैन ऑल्सो क्रिएट द डिजिटल हैंडआउट्स according to the needs of the lesson, and it can be sent to through email or the ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो खास तौर से जो है रिसर्च वगैरह में जो है ये ईमेल के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से जब आप किसी सोशल कॉज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आपको रिएक्शन प्राप्त हो, तो ऐसे समय ये डिजिटल हैंडआउट्स इट बिकम्स वेरी इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इनका प्रिंट नहीं कराना पड़ता है। डिजिटली यू कैन शेयर विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल at the same time. Then interactive handouts, तो इंटरैक्टिव में पहले तो जैसे हमने पिछले हैंडआउट में जैसे हमने बात की थी, इस वाले हैंडआउट में एक एक इंडिविजुअल को हम दे देंगे और बच्चा स्वयं इस पर काम करेगा। पर ऐसे भी होते हैं इंटरैक्टिव हैंडआउट्स जिसमें कि आप देखोगे डिजिटल टूल में इंटरैक्टिव मतलब टीचर एंड टॉट के बीच में लगातार डायलॉग हो सकता है, और ऐसे डायलॉग में स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि देयर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड। और जब इंटरैक्टिव सेशन होता है तो छात्र फुल्ली एंगेज, मोटिवेटेड और आप देखते हैं कि क्लासरूम में अलर्ट होते हैं। सो बाय यूजिंग दिस हैंडआउट्स इफेक्टिवली, एजुकेटर्स कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट देयर लैंग्वेज लर्निंग जो जर्नी है। इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग में हमको मल्टीपल मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सा मीडियम छात्रों के लिए बेहतर होगा ये हम नहीं बता सकते हैं unless and until teacher uses variety of instructional aids in the classroom। और यह भी आवश्यकता नहीं है कि 45 क्लास की मिनट की क्लास में टीचर इन सभी डिजिटल एड्स का इस्तेमाल करे, नहीं। टीचर 1, 2 मैक्सिमम 3 जो है इन इंस्ट्रक्शनल एड्स को अपने चैप्टर की आवश्यकताओं के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता है। पर टीचर को ये जानकारी होना जरूरी है कि ये इंस्ट्रक्शनल एड वैरायटी के होते हैं और कब, कहाँ और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाना है, ये टीचर की इंटेलिजेंस के और उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये आपके पास हैंडआउट्स का एक और एग्जाम्पल है। उसमें एक्शन वर्ब्स दिए हैं, बच्चा दौड़ रहा है, स्विमिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। सो ये एक्शन वर्ब्स हैं। सो बच्चों को ये समझ में आएगा कि पिक्चर के साथ बताएंगे तो एक्शन वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। रीड, यहाँ पर एक छोटी सी ग्रेप की स्टोरी दी है। दिस इज अ ग्रेप, दिस ग्रेप इज पर्पल। सो ग्रेप का पूरा एक डिस्क्रिप्शन एक ऐसे के रूप में ग्रेप को दिया गया है। पर यदि इसी हैंडआउट को कलर पिक्चर के रूप में यदि टीचर देगी तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, या फिर यही हैंडआउट जो है छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और छात्रों को ये कहा जाए कि वो इसमें विभिन्न तरह के कलर करें। चूंकि इसमें लिखा हुआ है द फ्रूट इज पर्पल, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रूट हमेशा पर्पल भी होता है, क्योंकि ग्रीन भी होता है और आप देखोगे थोड़ा सा पिंकिश भी होता है जब वो पर्पल होने के बीच का भी जो कलर है। सो तरह तरह के जो है ग्रेप्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये बच्चे ने यदि एक्चुअल में ग्रेप्स को देखेगा
तो वो उसकी इमेजिनेशन की पावर बढ़ेगी और उसको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो आप ये ब्लैक एंड वाइट वाला भी छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये एक्टिविटी छात्रों के लिए बहुत अधिक इंटरेस्टिंग होगी, स्पेसिफिकली इन द लोअर क्लासेस। Now we will be talking about the PowerPoint presentation in English language teaching. Since इस वीडियो में आप PowerPoint प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही बातों को समझ रहे हैं या फिर हम आपके साथ इस PowerPoint प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं, तो हमको बहुत इलॉबरेट तरीके से शायद इस पे बात नहीं करनी पड़ेगी, पर फिर भी कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम विस्तृत रूप से इस बारे में चर्चा करेंगे कि हाउ PowerPoint प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। सो पहली बात ये है कि ये तो एक वैल्यूएबल टूल है। आपको मेरे ख्याल से पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा कि PowerPoint प्रेजेंटेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में कितना हेल्पफुल है। इट प्रोवाइड्स अ विजुअली एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव वे टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। और आप देखोगे कि PowerPoint को किस तरह से कक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है वो आप देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात क्या है, ये विजुअल एड्स है। सो PowerPoint अलाउज फॉर यूज़ ऑफ इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स टू सपोर्ट लर्निंग एंड एंगेजमेंट। तो ये PowerPoint प्रेजेंटेशन जब आप देख रहे हैं तो आप उसको बैक जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, बैक करिए, फॉरवर्ड करिए, नोट्स लिखिए। कोई की पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो उस स्लाइड को आप पूरा दोबारा पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका मतलब क्या है कि विजुअल एड्स होने की वजह से एक बार बना लिया तो वो हमेशा के लिए काम आता है, तो बार बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात है, so PowerPoint presentation can be organized in a logical and structured way, making it easy to follow and review material. इसका मतलब क्या है कि इसी वीडियो को जब आप देखेंगे तो पहले हमने जो है वर्कशीट्स की बात की, फिर हैंडआउट्स की बात की और अंत में हम PowerPoint प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, structured presentation of content is very very important in PowerPoint presentation. फिर interactivity, PowerPoint can include interactive elements such as quizzes, games and discussion to promote students engagement. इसका मतलब क्या है कि PowerPoint presentation का ये तो एक एग्जाम्पल है जिस माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं, पर इस PowerPoint प्रेजेंटेशन को कई तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि क्विज में आप देखिए टीचर ने PowerPoint प्रेजेंटेशन के थ्रू क्विज बना लिया और क्विज में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दे दिए और आपने ये PowerPoint प्रेजेंटेशन को क्लासरूम में ऑन कर दिया और जो है छात्रों के ग्रुप्स बना दिए और उस क्विज के माध्यम से छात्रों को आप इंग्लिश के आप क्विज करवा सकते हैं, गेम्स करवा सकते हैं, या फिर आपने कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन दे दिया, एक टॉपिक दे दिया और छात्रों को ये कहा कि डिस्कशन करिए। पहले छात्रों को टॉपिक देकर उनसे डिस्कशन करवाया, फिर आपने किसी एक्सपर्ट का उसी टॉपिक पर डिस्कशन सुना दिया बच्चों को। और ख़ास तौर से ये डिस्कशन वाला जो है वो सीनियर क्लासेस में टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सो पहले बच्चों से डिस्कशन करवाया, फिर एक एक्सपर्ट से डिस्कशन करवाया और दोनों के डिस्कशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो छात्रों की जो है कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और इस टाइप की जो क्विजेस, गेम्स और डिस्कशन होते हैं, डेफिनेटली दे एंगेज स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एक्टिविटी. So PowerPoint presentation can be used in different ways in the classroom according to the needs of the learner. Then how effectively we can use PowerPoint presentation in English language. फिर वही बात आती है clear and concise slides. इसका मतलब क्या है कि आप अपनी स्लाइड्स में बहुत कंसाइज और क्लियर रखें जो कि छात्रों को पढ़ने और समझने के लिए बहुत आसान हो. नंबर 1. दूसरा, रिलेवेंट इमेजेस एंड मल्टीमीडिया. इसका मतलब क्या है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित इमेज या मल्टीमीडिया या फिर वीडियोस का आप इस्तेमाल करें.
आप बात कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो आपको ऐसे ही उदाहरण देने पड़ेंगे। यदि आप वर्कशीट और आप हैंडआउट्स की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल या ऐसे ही पिक्चर्स या इमेजेस लगानी पड़ेंगी जो कि आपकी टॉपिक से रिलेटेड है। देन इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, यदि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसमें आप कौन कौन से, जैसा कि हमने पिछले साइड में बात की है, तो उसमें आप क्विज है, गेम्स हैं, डिस्कशन है, ऐसी चीज़ों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि छात्रों का भी पार्टिसिपेशन इक्वली क्लासरूम में बना रहे, जिससे उनका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में बना रहे। देन आइडियाज़ फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ कहाँ पावर प्रेजेंटेशन को लैंग्वेज टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वोकैबुलरी बिल्डिंग है। सो ऐसे प्रेजेंटेशन बनाइए विच फोकस ऑन स्पेसिफिकली वोकैबुलरी वर्ड्स, फ्रेजेस, जिसमें आप चाहो तो डेफिनेशंस कहें, एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे सबका इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर ग्रामर की एक्सप्लेनेशन में, सो ग्रामर के विभिन्न जो सिद्धांत होते हैं, रूल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं, उनमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में तो पिछले कई स्लाइड्स में भी हमने इस बारे में बात की है कि रीडिंग पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्कशंस हैं, की पॉइंट्स आपने दे दिया एंड यू विल प्रॉम्प्ट द लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। सो इस तरह से आप वेरियस टॉपिक्स में अकॉर्डिंग टू द a group of the learners you can use PowerPoint presentation in various ways। फिर इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके कुछ टिप्स आपको दिए जा रहे हैं। कीप इट सिंपल, जैसे अवॉइड क्लटर, है ना, डिसऑर्डर्ड नहीं होना चाहिए। स्लाइड जो है सिंपल हैं और डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी आप यूज़ ना करें, और इन केस आपने डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ की है तो ब्रैकेट में आप उसका ईजी वर्ड भी सिंप्लीफाइड ढंग से लिख दें जिससे कि छात्रों को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि यदि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अपनी स्किल दिखाने के लिए करेंगे तो छात्र जो है आपकी प्रेजेंटेशन को देखेगा ही नहीं। सो सिंस वी आर preparing this PowerPoint presentation for particular learners, so we have to see that whether we are able to create such effective PowerPoint presentation जो कि एक particular learner group की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि नहीं। फिर use visual, इसका मतलब क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खाली टेक्स्ट नहीं रखना चाहिए, बीच बीच में इमोजेस हैं, वीडियोस हैं, ग्राफ्स हैं, इन सब को भी यूज़ करना चाहिए विच विल सपोर्ट द लर्निंग एंड एंगेज विद द लर्नर्स ऑल्सो। एंड इन effective PowerPoint presentation we have to give them activities to practice also। और फिर हम इस बात करेंगे कि in English language or any other language practice is very important for effective delivery। So we have to make it sure that there are some review exercises given in the PowerPoint presentation for practice also। So by using PowerPoint presentation effectively, educators can create engaging and interactive lessons that support the students' learning, and specifically it helps the in language development। So in the conclusion, in last 20-25 slides, what we have talked about, we will be concluding this video with this one, that the use of various teaching aids and tools such as worksheets, handouts, PowerPoint presentation, it can enhance English language teaching and learning. These tools provide opportunity for interactive learning, visual engagement, practice and reinforcement in organization and structuring। So by incorporating a range of teaching aid or instructional aids or tools, educators can create engaging, interactive, effective English language lessons that will support students' learning as well as it will help in language development also। So in the last 2 slides, I have discussed a few review questions. So
after going through or watching through these videos, you will be able to answer these questions. So short question में हमने दो questions लिए हैं. What are the benefits of using PowerPoint presentation in language learning for all learners? So when we talk of all learners, it means we have to ensure that whether the PowerPoint presentation used in the classroom will be useful for the special children or not. Second is, how can worksheets and handouts be used to support language learning? फिर कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं. डिस्कस द रोल ऑफ टीचिंग एड्स एंड टूल्स इन एनहांसिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग. एंड सेकेंड इज explain how instructional aids can be used effectively in the classroom teaching. Provide examples of different types of teaching aids and tools. और अंत में हमने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं. इफ़ यू विश टू रीड फर्दर information on this particular topic, these are the references available. और आप इन रेफरेंसेस के माध्यम से यू कैन एनहांस योर नॉलेज. इन्हीं शब्दों के साथ आपका नमस्कार.